Hello, students. A very good morning to all of you. I hope you are doing well at home, you are safe at home, and learning from there only. We are again back with another video from class 11, chapter number 2, that is biological classification. In our previous video, we have learned about the living world, in which we have studied about classification, but in this video we are going to study the five kingdom system. So let's begin. So students, from biological classification, the name biological means something related to biology, and classification, which we have discussed in previous chapter, to classify something, right? So we are going to study biological classification of different species. Systematics studies diversity of life, study and classification of organism with the goal of reconstructing their evolutionary history. हम लोग सिस्टमैटिक्स क्यों यूज़ करते हैं? ताकि कोई भी दो ऑर्गेनिजम्स में हमको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जो उनकी हेरिडिटी है, जो उनका रिलेशनशिप है, वो पता चल सके. टैक्सोनॉमी स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग, नेमिंग एंड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स. आपको पहले भी बताया है, हम ऑर्गेनिज्म को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनका नॉमेनक्लेचर होता है, मीन्स नेमिंग होती है, फिर उनको क्लासीफाई करा जाता है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, राइट. सो द साइंटिस्ट लीनियस डेवलप्ड बाइनोमियल नेमिंग सिस्टम और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. ये मैं आपको पिछले चैप्टर में भी बता चुकी हूँ. नाउ in this picture, a geographical address means in geography you can see continents, country, state or province, city, building, floor, room or apartment, right? But in taxonomical or in biology there are different addresses for organisms like kingdom, phylum, class, order, family, genus and species. Okay, so classification. In classification, there is a five kingdom system, namely Monera, Protista, Plantae, Fungi and Animalia. फाइव किंगडम सिस्टम होता है जिसके अंदर पांच किंगडम होते हैं: मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंजाई एंड एनिमेलिया. अब मोनेरा के ही दो पार्ट्स होते हैं, यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया, राइट. तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो यही सिक्स किंगडम सिस्टम हो जाता है. नेक्स्ट आता है थ्री डोमेन ऑफ लाइफ. थ्री डोमेन ऑफ लाइफ में तीन डोमेन्स आते हैं: यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट यूकैरिया, राइट. अब इसी को हम एट किंगडम सिस्टम में डालेंगे तो यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, यहाँ पे प्रोटिस्टा को तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है: आर्कीजोआ, क्रोमिस्टा एंड प्रोटिस्टा, राइट. प्लांटे, फंजाई एंड एनिमल. ये हो गया आपका एट किंगडम सिस्टम. बट इसमें से जो प्रॉपरली अवेलेबल होता है या एक्सेप्टेबल होता है वो है आपका फाइव किंगडम सिस्टम. इस पूरे चैप्टर में वी विल स्टडी ऑल द किंगडम, द फाइव किंगडम्स, राइट. मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंजाई एंड एनिमेलिया. दिस इज अ सिक्स किंगडम सिस्टम. अभी मैंने आपको बताया मोनेरा टू पार्ट में डिवाइडेड है, यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया. According to molecular classification, I have told you there are three domains of life. First domain is eubacteria or bacteria. Second domain is archaebacteria and third domain is eukaryotes, right. Now in this picture different features are given, and according to those features the domains have been classified: archaebacteria and eukarya. Amino acid that initiates protein synthesis, introns. So in archaea it is methionine, bacteria में हो गया formyl methionine and eukarya में methionine. Second is membrane bounded organelles is absent in archaebacteria, absent in bacteria and it is present in eukarya. Membrane lipid, branch, unbranched and again unbranched. Nuclear envelope absent and in eukarya it is present. Number of different RNA
इन आर्किया सेवरल आरएनए पॉलीमरेज आर देयर, बैक्टीरिया में 1 होगी और यूकैरिया में सेवरल. पेप्टिडोग्लाइकेन इन सेल वॉल absent, present and absent. Response to the antibiotics in archaea, growth not inhibited. In bacteria, growth is inhibited, and in eukarya, growth not inhibited. So prokaryotic evolution, kingdom Monera is not monophyletic. Two main branches are there in Monera, Archaebacteria. अब व्हाट इज़ आर्की बैक्टीरिया? आर्की बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सरवाइव करते हैं, मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव करते हैं. और यू बैक्टीरियाज होते हैं. सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर several bacterias are given: Methanospirillum, Archaebacteria and Eubacteria, Thermoacidophilus, Methanogenium, Thermophilum, Methanobacterium, gram negative, gram positive, Anabina, right? So these are all the examples of Archaebacteria and Eubacteria. In this picture you can see the bacteria on the point of a pin. This is the largest known prokaryote, a marine bacterium, Thiomargarita namibiensis. This places contains heat loving prokaryotes. ऐसे बैक्टीरियाज इस प्लेस पे पाए जाते हैं जो हीट लविंग होते हैं, मतलब जो हॉट कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं. एक्सट्रीमो हेलोफाइल्स, एक्सट्रीम हेलोफाइल्स क्या होते हैं? हेलोफाइल्स मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ऐसे बैक्टीरिया जो हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन में रह सकते हैं. एग्जाम्पल सी, ठीक है, जिसका पीएच जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, अल्कलाइन पीएच होता है. आर्कीबैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, निमोनिया, साइनोबैक्टीरिया, एंथ्रैक्स. सो in this picture we are going to study difference between Archaebacteria and Eubacteria. Eubacteria cell wall consist of peptidoglycan. Eubacteria में peptidoglycan की बनी होती है cell wall, and Archaebacteria में it is made up of polysaccharides and proteins. Eubacteria has no histone protein associated with DNA. Histone protein क्या होते हैं? जो DNA को बांध करके रखते हैं, right? तो it is not present in Eubacteria, but histone protein is present in Archaebacteria. Small and simple RNA polymerase is present in Eubacteria, and RNA polymerase is more complex in Archaebacteria. Absent of membrane enclosed granules. Membrane enclosed granules absent होंगे Eubacteria में, and it is present in Archaebacteria. In Eubacteria has no न्यूक्लियर एनवलप. न्यूक्लियर एनवलप पहले बताया आपको, न्यूक्लियस के ऊपर की जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप, विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन यूबैक्टीरिया एज वेल एज आर्कीबैक्टीरिया. यूबैक्टीरिया इज़ वेरी सेंसिटिव टू रिफामाइसिन एंटीबायोटिक्स, एंड आर्कीबैक्टीरिया इज़ नॉट सेंसिटिव टू रिफामाइसिन एंटीबायोटिक्स. टाइप्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स आर्कीबैक्टीरिया के. आर्कीबैक्टीरियाज के टाइप है मीथेनोजेंस, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड हेलोफाइल्स. मीथेनोजेंस ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ मीथेन जहाँ पर प्रेजेंट होगा ऐसी जगह पर सर्वाइव करते हैं. थर्मोएसिडोफाइल्स, थर्मो मीन्स टेम्परेचर, एसिडोफाइल्स मतलब एसिडिक कंडीशन. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे बैक्टीरियाज जो हाई टेम्परेचर एज वेल एज एसिडिक कंडीशन में सर्वाइव करते हैं वो होते हैं थर्मोएसिडोफाइल्स. एंड हेलोफाइल्स मतलब जो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में ग्रो होते हैं या ऐसी प्लेसेस पे ग्रो होते हैं जहाँ पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, वो होते हैं हेलोफाइल्स. सो इन दिस पिक्चर ब्रीफ नोट इज गिवन अबाउट मीथेनोजेंस. मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया वो मीथेनोजेंस होते हैं, राइट? ये बैक्टीरिया CO2 को कन्वर्ट करते हैं स्वामी एरियाज इनटू मीथेन. CO2 को कन्वर्ट करते हैं मीथेन में. दीज बैक्टीरिया कन्वर्ट द ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन काउ डंग इनटू मीथेन. मैंने आपको बताया मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, राइट? एग्जाम्पल है मीथेनोकोकस.
राइट। हेलोफाइल्स मीन्स सॉल्ट लविंग, अभी बताया आपको, ऐसी प्लेसेस जहाँ पर सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, राइट। सॉल्टी एरियाज कैसे होते हैं, जैसे सॉल्ट लेक होती है, डेड सी होती है, राइट। Halophiles are surrounded by purple membrane in which a pigment bacteriorhodopsin is found. Due to this reason, membrane absorbs the bright light and directly forms ATP. They cannot prepare food like eubacteria. Instead of it, they directly form ATP. क्या फॉर्म करते हैं, डायरेक्टली ATP फॉर्म करते हैं. Therefore, they are non photosynthetic. मतलब इसमें इन हेलोफाइल्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है. थर्मोएसिडोफाइल्स अभी बताया, हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिक कंडीशन में जो सरवाइव करते हैं वो थर्मोएसिडोफाइल्स होते हैं. टाइप्स ऑफ यू बैक्टीरिया, अभी तक हमने आर्कीबैक्टीरियाज के टाइप पढ़े, कौन कौन से थे, मीथैनोजेंस, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड हेलोफाइल्स. अब टाइप्स ऑफ यू बैक्टीरिया पढ़ेंगे. सबसे पहला आता है साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं. साइनोबैक्टीरिया हैव क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होती है, और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं. फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. साइनोबैक्टीरिया वर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ऑन आवर अर्थ एंड ऑल्सो नोन एज BGA. साइनोबैक्टीरियाज जो होते हैं वो सबसे पहले ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्होंने ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया था अर्थ पे, और इनको BGA भी कहते हैं. BGA मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गे. द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर होते हैं, ठीक है. यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल के बने होते हैं. एग्जाम्पल है स्पायरुलिना. कॉलोनियल मतलब कॉलोनीज भी फॉर्म करते हैं. एग्जाम्पल है एनाबीना. और फिलामेंटियस भी होते हैं, मतलब फिलामेंट्स प्रेजेंट होती है. और एग्जाम्पल है उसका ऑसिलाटोरिया. दे मे बी फ्रेश वाटर और मराइन, फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं और मराइन कंडीशन में भी प्रेजेंट होते हैं. मोस्ट ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. आपने पढ़ा होगा जब फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे होगे तब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं, तो इनको हम बोलते हैं हीटेरोसिस्ट. एग्जाम्पल है इसका नॉस्टॉक एंड एनाबीना. द नेक्स्ट वन इज कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक. chemosynthetic autotrophic means they are non photosynthetic autotrophs, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं होता लेकिन अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. अब हाउ दे विल प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे यूज केमिकल एनर्जी इंस्टेड ऑफ लाइट एनर्जी. हम फोटोसिंथेसिस में क्या पढ़ते हैं, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, बट इन दिस केस कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डायरेक्टली केमिकल एनर्जी यूज़ करते हैं. केमिकल एनर्जी उनको कहाँ से मिलती है, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स. फोटोलाइसिस ऑफ वाटर डज नॉट टेक्स प्लेस हियर. यहाँ पे फोटोलाइसिस नहीं होता, किसका, वाटर का. क्यों, क्योंकि लाइट प्रेजेंट नहीं है. सो हाइड्रोजन इज रिसीव फ्रॉम अदर सोर्सेज. हाइड्रोजन जो है अदर सोर्सेज से मिलती है, जैसे इनऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स हुए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एक्सेट्रा. कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल है सल्फर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज. नेक्स्ट वन इज हीटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया. हीटेरोट्रॉफ्स कौन होते हैं, दैट विल डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, राइट. दीज आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं. मैनी ऑफ देम हैव अ significant impact on human affairs. They are helpful in making curd from milk, production of antibiotics, fixing nitrogen in legume roots etc. राइट. जो कर्ड होता है, मिल्क में से कर्ड बनता है, उसमें ऐसे बैक्टीरियाज यूज़ होते हैं. एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में ऐसे बैक्टीरियाज यूज़ होते हैं. नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज़ होते हैं. सम आर पैथोजेंस. पैथोजेंस क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं, आपको कोई डिजीज़ दे सकते हैं, वो होते हैं पैथोजेंस. कॉज डैमेज टू ह्यूमन बींग, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स. कॉलेरा डिजीज कॉज्ड बाय डिफरेंट bacteria. Next one is mycoplasma. Mycoplasma are organisms that completely lack cell wall. Mycoplasma में cell wall present नहीं होती है. These are the smallest living cells. ठीक है, ये सबसे छोटे लिविंग सेल्स होते हैं दैट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के विदाउट सर्वाइव कर सकते हैं, तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, एनएरोबिक भी बोल सकते हैं. Many mycoplasma are pathogenic in animals and plants.
बहुत सारे माइक्रोप्लाज्मा होते हैं जो पैथोजेनिक होते हैं, मतलब हार्मफुल होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स के लिए. So student, this is all about Monera, and I hope you are well understood by this video. And if you have any query regarding this video, you can write in the comment section, and if everything is clear, you can like the video. Thank you so much.